ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੱਛਮੀ ਅਰੁਣਾਪੁਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਤਲਵਾੜਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 7 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, SS ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤਰੀ ਸਕੱਤਰ JV ਵਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੂਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਸੂਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਬੂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਦਸੂਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਸੂਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਵੀਲਚੇਅਰ ਦਾ, ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ, ਟਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9417630666। ਮੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। हाँ, आज भारत विकास परिषद की डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हुई है हुशियारपुर की, यहाँ दसूहा में। श्रीमती अरुणा पुरी जी जो है वो प्रधान थे, उनकी प्रधानगी में ये मीटिंग बहुत सफल रही। सभी शाखाएं यहाँ पे उपस्थित रहीं और सभी ने अपनी रिपोर्टिंग जो है वो बहुत भली भांति दी और विभिन्न व्यक्तियों ने भारत विकास परिषद के भिन्न भिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी। और इसके साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बहुत सफल कार्यक्रम था। मैं अरुणापुरी भारत विकास परिषद पंजाब पश्चिम की अध्यक्षा हूँ और भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है, NGO है। ये ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं, हर स्टेट में इसकी ब्रांच है और ये सेवा और संस्कार के मुख्य काम करती है। स्कूलों में बच्चों को संस्कार देना और जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं ज़रूरतमंद, जिनको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत पूरी करना। और जितने भी हमारे अंगहीन लोग होते हैं, दिव्यांग भाई बंधु होते हैं, उनको हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ लड़कियों की शादियां करना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ, तीनों प्रोजेक्ट चल रही हैं। इसके साथ साथ इस वर्ष हमारे संस्था ने
अनीमिया मुक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये 2 प्रोजेक्ट नए लिए हैं ताकि जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और जो लड़कियां एनीमिक हैं आगे जाकर उनको हेल्थ प्रॉब्लम आती है, उनको शुरू से ही ऐसी हम जांच करवाकर उनका इलाज करवा सकें। तो ये ऐसे काम हैं, अनगिनत काम है जो भारत विकास परिषद करता है। उससे भारत को जानो क्विज कंपटीशन करवाता है संस्कार में, और एनजीएससी जिसको हम की राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता कहते हैं, नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, इस तरह के कंपटीशन करवाते ताकि बच्चों में उसमें भाग लेने की भावना और उसमें कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो आगे जाके किसी भी फील्ड में जाएं तो कंपटीशन में आराम से भाग ले सकें। उसमें बच्चों में आत्मनिर्भरता भरना और उनके लिए जितनी भी उनकी अंदर गुण हैं उनके उनको बाहर निकालना, ये एक भारत विकास परिषद का काम है। और समाज में लड़कियों की शादियों में हेल्प करना और इसके साथ साथ मेडिकल एड देना, मेडिकल चेकअप कैंप लगवाना, मेडिकल एड देना, ये सारे जो हमारे सेवा के काम हैं। वृद्धाश्रम में जाना, राशन वितरण करना। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि कोविड के टाइम में हमने बहुत काम किया और इसके साथ साथ हमारे लगभग 33,000 लोगों को वैक्सीनेशन करवाई है, जो कि सिर्फ हमारे पंजाब वेस्ट के 5 जिलों में ही हुई है। और इसके लिए पहले उनको लोगों को अवेयर किया गया कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए। तो इस महामारी से लोगों का बहुत मुख्य मुद्दा ये था हमारा कि दसूहा में हम चाहते, हमने ब्रांच खोली थी कुछ साल पहले, तो वहाँ यहाँ लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हम क्या करते हैं। हम चाहते थे कि आज मीटिंग यहाँ रखें ताकि लोगों को बता सकें कि हमारा मकसद क्या है। किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म के साथ हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं। हम सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की ये है संस्था, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि गाँव जैसे दसूहा के आस-पास छोटे-छोटे गाँव भी हैं, तो हमारा मैसेज उन गाँव तक ये शाखा पहुँचाए। इसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकें। लोग हम तक नहीं, हम लोगों तक पहुँचे, ये हमारा मकसद है। हमारी जो दसूहा शाखा, किसी भी शहर में जो हमारी शाखा है, उनके पास हमारे सभी केंद्रों का नंबर है। अगर किसी भी दिव्यांग भाई बंधु को अगर आर्टिफिशियल लिम्स लगवाने हैं, तो हमारी शाखा के अध्यक्ष जैसे अरुण शर्मा जी हैं जो गौशाला के प्रधान हैं, उनके पास भी हमारा नंबर है। उनके पास उस केंद्र का नंबर भी है। तो आप वहाँ संपर्क करके कभी भी, इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है, वो आप ज़रूर पेशेंट को पहले से बताएँ। एक उनका आधार कार्ड होना चाहिए, एक हैंडीकैप सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जब भी आएँ हमारे केंद्र में आके अपना नाम रजिस्टर करके मेजरमेंट होती है पहले, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिटमेंट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास डेली आते हैं। सिर्फ अवेयरनेस नहीं होने के कारण कुछ लोग जो गाँव के हैं, उनको पता नहीं है इस फैसिलिटी का कि हम ले सकते हैं ये। तो वो हम चाहते हैं कि वो वंचित ना रह जाएँ। तो अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो सबको ये लाभ मिलना चाहिए। तो ये जो हम काम करते हैं इसमें पैसा तो खर्च होता है, लेकिन हम जो बड़े-बड़े शहरों में दानी सज्जन बैठे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले, वो इसको स्पॉन्सर करते हैं। क्योंकि हमेशा ये मन में आता है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करते तो पैसा कहाँ से आता? तो जो बहुत-बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, वो दानी सज्जन हैं, वो इसके लिए पैसा देते हैं और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, पेशेंट के लिए ये फ्री होता है। धन्यवाद।